we always recommend there should be always small and frequent meals. 3 major meals होने चाहिए, breakfast, lunch and dinner, and 2 snacks in between. 2 snacks as in the mid morning around 10-11 when you have after 2 hours of your breakfast, and in the evening around 4-5 p.m. after 2 hours or 3 hours of your lunch. ठीक है? And bedtime also sometimes people do need कि अगर हमने 7-8 बजे dinner कर लिया है, then people do feel hungry, so at bedtime also we can recommend a small meal, but that depends कि उनका क्या schedule है. मिड वाला फिर से So mid morning मतलब breakfast and lunch के बीच में, which is around maybe 10:30-11. Then in the evening after lunch, 3 hours maybe after lunch, around 4-5 p.m. Dinner should always जो gap होना चाहिए from dinner and bedtime minimum 3 hours, minimum 3 hours, right? That is very important. अब हमें ये देखना है कि if the person is within the normal BMI range, तो आप balanced diet recommend कर सकते हैं. मतलब 25 के अंदर है, the person has to maintain that BMI, right? For that cereals आप recommend करें, जैसे कि हर meal में जो cereals as in जो भी हम रोटी लेते हैं, राइस लेते हैं, दलिया, all the cereals, दलिया, पोहा, every your oats, rice, chapati, these are all, bread is all cereals. इडली डोसा, जो भी इन चीज़ों से products बने हैं using cereals like pasta, vermicelli, these are all cereals, right? Even biscuits, वो भी cereal ही हैं because they are made up of wheat or maida, right? Then उसका जो normal होता है वो 6 to 8 servings होता है. मतलब for women it's 6 servings in a day. 6 servings means 1 chapati, not very large, but maybe approximately equal to a CD. जो CD होता है compact disc, equivalent to that is 1 serving. So yeah, 1 katori of rice is 1 serving. 1 slice of bread is 1 serving. या 1 cup cooked कुछ भी, जैसे राइस ले रहे हो, दलिया ले रहे हो, ओट्स ले रहे हो, 1 cup of that cooked thing is 1 serving. 1 cup, not बड़ा वाला बोल नहीं, 1 cup, 1 कटोरी जो होता है, right? Fill to the rim. So 6 servings for a normal BMI person, for a woman. मतलब अगर मैंने सुबह 1 पराठा लिया, दोपहर में 2 चपाती ली, रात को 2 चपाती ली, तो 5 servings मेरी हो गई. एक आप किसी भी मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, राइट? तो ऐसे डिवाइड करना है. 6 रोटीज इन अ डे. 6 रोटीज इन अ डे फॉर अ नॉर्मल पर्सन. जो एक्टिव लाइफस्टाइल भी है जिसकी, देन दे शुड नॉट ऐड राइस, ब्रेड, बिस्किट, मतलब वो सब छोड़ के, हाँ सब काउंट करके 6. काउंट करके 6. इट्स नॉट कि 6 रोटी भी, चावल भी, बिस्किट भी, नो, नॉट दैट वे. ओके, इफ यू आर हैविंग 2 biscuits, that is 1 portion. If you are having 1 slice of bread or 1 sandwich is 1 portion. मतलब एक सैंडविच ब्रेड को हम हाफ करके एक बनाते हैं, तो that is 1 serving. So 6 servings for a woman and 8 servings for men. But again you have to remember the person has to be active at least 4 to 5 days. वो he is maintaining that exercise schedule. He is into normal BMI, no other issues. मतलब जो जनरल हार्ट इश्यूज ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े ना हो, PCOS ना हो किसी women को. So you have to take care, a normal healthy woman. But when a person has to reduce weight, then the cereal intake should be 3 to 4 servings in a day. मतलब 1 आपने ब्रेकफास्ट में लिया, 1 लंच में लिया, 1 डिनर में लिया, and maybe 1 during the day, any day. 3 to 4 servings. मतलब 1 पराठा या फुल्का आपने ले लिया ब्रेकफास्ट में, दोपहर में 1 कटोरी यू हैव टेकन राइस, शाम को आपने यू हैव टेकन पोहा और उपमा, एनी 1 थिंग, तो वो हो गया 3 से 4. right. Always remember कि जब ब्रेकफास्ट में it should be a balanced breakfast. Balanced as in carbs भी होने चाहिए, cereal भी होना चाहिए, protein भी होना चाहिए, vitamin minerals भी होने चाहिए. How will you get that? Protein try कि हर मील में एक प्रोटीन सोर्स जरूर हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड ड्यूरिंग द इवनिंग, नॉट वेरी लेट एट नाइट. अगर 7-8 बजे
बजे अगर कोई 7 बजे तक डिनर कर रहा है देन इट्स फाइन. नॉट वेरी बियॉन्ड 8 PM वी शुड नॉट रिकमेंड प्रोटीन क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, राइट. सो 1 प्रोटीन इन एवरी मील. जैसे अगर आप पराठा ले रहे हैं, अगर आप वो पनीर का पराठा ले रहे हैं, यू ऑलरेडी इंक्लूडिंग सीरियल एंड प्रोटीन, राइट. बट साथ में आपको कुछ विटामिन मिनरल्स, सम वेजीज, स्प्राउट्स या कुछ ऐसा आपको लेना है, या फ्रूट समथिंग जो आपको एक कंप्लीट मील बनाता है. स्टार्ट योर डे विद नट्स एंड सीड्स. नट्स 4 almonds, 1 walnut and 1 teaspoon of seeds. You can start, लेकिन वो भिगोए होने चाहिए. They should be soaked. Not seeds but nuts should be soaked in water because उनके nutrients की bioavailability बढ़ जाती है, राइट. अगर आप ऐसे ही नट्स लेते हैं, काजू यू कैन टेक 2, नॉट मोर देन दैट. यस. 4 almonds, 1 walnut as in 1 जो whole walnut होता है, and 1 teaspoon seeds, any seed. The walnut को भी soak करना है? Yes. They ideally should be soaked in water, right. Starting your day with this, maybe 1 glass of water, lukewarm water या जो भी normal Diet. water that you take. Then breakfast should be a combination of Don't cereal चाय and protein. पीना लोगों को चाय कॉफी before this after See, अगर किसी की हैबिट में है then it's okay. We don't, मतलब हम उनको बहुत rigid नहीं करते हैं कि नहीं आपको चाय नहीं पीनी है, because I myself, and it's okay to have 2 to 3 cups of tea. या कैफीन का इंटेक भी होता है. So 200 milligram of caffeine in a day is healthy, which is recommended by ICMR, NIN, National Institute of Nutrition, ICMR. So 200 milligram मतलब अगर आप normally 1 कप चाय लेते हैं तो उसमें around 50-55 milligram of caffeine होता है. Coffee has more. It might go up to maybe 80-90 milligram depending on the serve size of coffee. So 1 cup of normal cup of tea will have approximately 50 to 55 milligram of caffeine, depending आप कितना बड़ा कप ले रहे हो चाय का, how strong it is, right. Average इतना है. So that is why we recommend कि in case you want to take tea 2 to 3 cups in a day is fine. If you're not taking any other source of caffeine, because all the carbonated drinks, colas will have caffeine, chocolates will have caffeine, coffee will have caffeine, tea will have caffeine, और कोई भी any drink you can read on the label also कि caffeine है इसमें कि नहीं है and how much. So that ways tea you can give, but supplements के साथ tea नहीं होना चाहिए. You have to give a gap because caffeine जो है iron, calcium, zinc, इनका जो absorption है it hinders, मतलब वो 80 to 90% उसका absorption cut कर देता है. So how much should be the gap? 1 hour. अगर आयरन के साथ है तो मिनिमम 2 hours. 2 hours. नहीं तो मिनिमम तो मतलब आप रखो 1 घंटा तो एटलीस्ट. 2 hours नहीं कर सकते हो. बट कैफीन के साथ यू शुड नॉट टेक एनी सप्लीमेंट्स. दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. चाय ले रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, अगर सो supplements sometimes obviously our supplements is with meals or after meals. Then try recommending कि अगर दोपहर में या इवनिंग में, अगर morning the person is taking tea with breakfast, then don't recommend supplements with that. Either recommend with lunch or maybe some snack in between. उसके साथ भी आप ले सकते हैं, डिनर के साथ भी ले सकते हैं, depending what is the supplement. So 1 protein source is in every meal. 2 to 3 bowls of vegetables in a day. मतलब cooked या फिर raw, any form of vegetables. Whether you're taking a salad along with that is also Vegetables means any bhindi, tori, lauki, any. 3 cups. Chole, rajma, anything. छोले राजमा is not vegetable. No. No. Okay. ये सारे उसमें आते हैं, दाल में आते हैं, legumes में Okay. आते हैं, beans में आते हैं. Vegetables all your green, colorful, red, gajar, shimla mirch, cauliflower. Yeah? No, 3 cups cooked or raw. If you're taking, मतलब आपको 3 कप तो लेना ही है, चाहे आप वो cooked form में ले रहे हो, salad के form में ले रहे हो, you're adding into poha, you're adding into some preparation,
मतलब 300 to 400 grams मतलब of broccoli, beans, carrot and everything. Yes. Okay, right. 300 to 400 grams of vegetables you can divide. Sort any form. But you have to take at least 300 to 400 Per grams day, right? per day. Per day. जैसे कि हम मॉर्निंग में करने से पहले तो क्या Yes. मतलब ओके टू टेक अ Empty stomach you should not. क्या होता है कि उसमें फ्रक्टोज होता है which is also a simple sugar which can raise your sugar levels drastically. Empty stomach you should not take People who are fruits. lean and vegetarian. No, it's not about lean or fat. It's raising your blood sugar levels. आपको मोटा जरूरी नहीं है वो मोटा कर रहा है बट आपको ब्लड शुगर लेवल्स तो रेज कर रहा है ना वो. सो फ्रूट भी 100 ग्राम ही recommended होता है इन अ डे. पीपल टेंड टू ईट मोर फ्रूट्स. आज हम वेट लॉस डाइट पे तो हम 3-4 टाइप के फ्रूट्स खा लेंगे भर भर के बट दैट इज आल्सो नॉट हेल्दी Yes. राइट बिकॉज उसमें फ्रक्टोज है. फ्रक्टोज इज इक्वली गुड एज सुक्रोज जो हमारा नॉर्मल टेबल शुगर होता है. लाइक इफ समवन इज टेकिंग लाइक हम डिटॉक्स वाटर मॉर्निंग में लेते हैं या हॉट वाटर लेते हैं देन आफ्टर लाइक हाफ एन आवर दे कैन बी टेक लाइक फ्रूट्स वगैरह कुछ खा सकते हैं नहीं, you should not. Ideally, the breakfast should be protein, fat, cereals, complex cereals. ऐसा नहीं कि मैदा खा रहे हो. कॉम्प्लेक्स मतलब आपके जो जिसमें फाइबर होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे होल व्हीट है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, oats है. दलिया है, oats है. These are good complex Nutri-meal carbs. है. Nutri-meal है. और जैसे कि सप्लीमेंटेशन की बात करें लाइक हम लोग बहुत सारे बार है ना रिकमेंड करते हैं ना एम्प्टी स्टमक एंड बहुत जने को चाय पीने की आदत है मॉर्निंग में तो उनको कैसे मतलब टाइमिंग हम कैसे वो करें जो एम्प्टी स्टमक है फिर आप पहले सप्लीमेंट ले लो. फिर गैप तो होना होना चाहिए. चाहिए. यस यू शुड टेक या केयर तो ऑफ फिर अगर दैट. किसी को हैबिट है तो चाय पी लेंगे बाद में ले लें. आफ्टर ब्रेकफास्ट सी यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. जब तक आप वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दोगे ना कंज्यूमर्स को तो वो कहेंगे इतना रिजिड सप्लीमेंट तो मैं नहीं ले सकता. देन यू हैव टू गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. इट्स ओके मतलब अगर आइडियली ये है बट इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इट आफ्टर एन आवर वंस यू हैव योर टी. So fruit should be 100 gram 100 ग्राम या वन मीडियम फ्रूट. throughout the day. Yes, only that. अच्छा 100 ग्राम फ्रूट मतलब 1 apple, One watermelon. medium apple, 1 orange, 1 bowl of chopped. People say we should take 5 fruits a day. तो is it? No. See, I am telling you ये basic nutrition ही नहीं है. So there are lot of myths, lot of fat diets, keto diet ये कर लो, ये वाली diet कर लो. But these are all, so keto diet का origination कहाँ से हुआ था? Protein. It was a diet for epilepsy. It was a therapeutic diet. जो लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि नहीं जी हम वेट लॉस पे बट दैट अगर लॉन्ग टर्म में आप उसको फॉलो कर रहे हो तो इट हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. So you should not take any diet without a recommendation of a certified nutritionist, right? लोग 3-3 महीने के भी कोर्स करते हैं but of course the basic जो है what we have learned is normal balanced diet. These extreme diets are only meant for specific conditions. Not everyone should follow, right? So 100 grams of fruit. आपको नट्स मैंने बता दिया. सो आप प्रोटीन एवरी मील इफ यू आर टेकिंग पनीर, इफ यू आर टेकिंग प्लेन पराठा, एग इज अ प्रोटीन सोर्स. मिल्क या कर्ड अगर आप ले रहे हो वो इज अ प्रोटीन सोर्स, राइट? इफ यू आर टेकिंग स्प्राउट्स और बॉइल्ड चना, सम प्रोटीन हैज टू बी एडेड इन द ब्रेकफास्ट. Every meal 1 cereal and 1 protein to be added. एंड वेजीज अकॉर्डिंगली क्योंकि लंच में जनरली लंच एंड डिनर पीपल डू कुक वेजिटेबल्स, सैलेड भी ले लेते हैं, राइट? अगर आप कोई वेजिटेबल स्टफ्ड पराठा इफ यू सजेस्ट सम प्रोटीन अलोंग विद इट. कुछ चाहिए तो अच्छा ठीक है आप पनीर बना लो, 3-4 पीस 4-5 पीस पनीर के खा लो. यू विल फील द डिफरेंस. यू ट्राई टू फॉलो, यू विल फील द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल्स आल्सो. So with You'll protein feel our more energy fuller. goes high. हाँ With protein our energy goes high. Yes, of course. सटाइटी मतलब आपको लॉन्गर टर्म तक जो है आपको सटाइटी मिलती है. यू फील एनर्जेटिक बिकॉज आपकी प्रोटीन नीड्स भी कम होती है. यू फील मोर लेथार्जिक, वीकनेस प्रोटीन की कमी से भी होता है. एंड वी आर डेफिशिएंट. इंडिया इज डेफिशिएंट इन क्वालिटी प्रोटीन एक्चुअली. हमको पता कैसे चलता है कि we are deficient of protein? जैसे हमने B12 वगैरह का पता
प्रोटीन डेफिशिएंसी कैसे? So there are symptoms. Your muscles will ache, bone aches भी होते हैं, lethargy आपको feel होगी, आप बहुत जल्दी थकोगे, right? आपके अंदर जब आप थोड़ा सा भी चल लोगे तो आपको लगेगा मैं exhaust हो रही हूँ. So there are multiple. So no tests. And of no test. It's just you can figure out with a person's diet. एंड आपको हेयर फॉल भी स्टार्ट होगा. Hair fall start होता है. कई लोग कहते हैं कि आप आंवला ये लगाओ वो लगाओ तो you know outer treatments बहुत देते हैं but people don't know that if you're not having enough protein hair पे impact आएगा, your nails पे impact आएगा, every body part पे impact आएगा. Okay. जो ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उनका कुछ साइड होता है? डेफिनेटली होता है. What किडनी पे बिकॉज क्या होता है एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा बर्डन डालता है आपकी किडनी पे. यूरिक एसिड इज जस्ट यू नो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा अगर आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है किडनी को ज़्यादा फ्लश आउट करना पड़ेगा. तो किडनी को ज़्यादा फ्लश आउट करना पड़ेगा तो किडनी पे बर्डन बढ़ेगा और किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं. Neha ma'am, which protein do you suggest is good? Is it from meat or is it from cereals? Every protein is good. You just need the right combinations of protein. Good quality protein is definitely animal-based products. जैसे आपका meat, chicken, your milk and milk product is all animal-based. Animal से आ रहा है ना food. Yes. जो plant-based protein है जैसे soybean है, it's a complete protein. But the other protein के combinations जैसे कि मैंने बताया चावल और दाल दोनों में एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होती है. जो चावल में नहीं है वो दाल में है, जो दाल में नहीं है वो चावल में है, राइट? सो व्हेन वी मेक दीज कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन. सो यू हैव टू टेक केयर कि आप राइट कॉम्बिनेशन एंड जो लोग प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं देन वी कैन रिकमेंड आवर शेक टू देम. डेफिनेटली बिकॉज इट्स गिविंग अराउंड आई थिंक 20 grams of protein. 20 grams of protein. So अगर आपका 60 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो 20 तो आपका न्यूट्री मील से ही हो जा रहा है. एंड दैट टू गुड क्वालिटी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में प्रॉपर अब्जॉर्ब हो रहा है. So with food we can't have that. Like हमको लगता है ना खाना खाया है अब ये प्रोटीन क्यों लेना? नहीं तो खाने के साथ आपको फिर देखना पड़ेगा कि Yes. अगर हम एक कटोरी दाल एक एग और एक और समथिंग प्रोटीन भी ले लेते हैं तब भी हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है. Nobody actually मुझे लगता है कि So how nobody can is we have the nutrient along with the food? So in the evening, as a evening snack is the best time अगर आपको कोई weight manage नहीं भी करना है, but you need those nutrients, you need that protein, you can have it in the evening. हमें शाम को भूख लगती ही है. Whenever you are on the go, you can carry the sachet and have it. Whenever you feel like कि मुझे खाना नहीं मिल रहा या delay हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, you can have Nutri meal on the go. That's very good option. Mid morning में आप ले सकते हो जब हमें लगता है भूख लग रही है. आप अगर कभी भी whenever you feel hungry, if you're not having protein in the breakfast, you will feel कि आपको 2 घंटे 1.5 घंटे बाद ही भूख लग रही है. You're not feeling that full. तो आप मिड मॉर्निंग में भी प्रोटीन ले सकते हो. जैसे आप फ्रूट के साथ अगर आपने कोई प्रोटीन कंबाइन कर लिया, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मोर फुलर फॉर लॉन्गर. आपको लगेगा यस आई एम सेटिस्फाइड. कई बार होता है कि फ्रूट खा के लगता है अब और भूख लग गई बिकॉज वो एपेटाइजर की तरह काइंड ऑफ काम करता है. बट इफ यू कंबाइन प्रोटीन you will definitely feel fuller for long. What do you say about peanuts as a source of protein? Peanuts is also very good. Again, anything in excess should not be taken because peanuts में 2 teaspoons, 1 to 2 teaspoons only, because that has saturated fats also. तो excess में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है. So peanuts. Paneer at dinner sometimes. So what do you suggest? It's a I round would diet. recommend after 7 p.m. मतलब ideally. But ideally, see, many of us have business people, so 7 o'clock it's not like अगर आपका possible. 3 घंटे का गैप हो रहा है, so it was haphazardly, बहुत ही गंदे मील टाइमिंग्स थे, मील कॉम्बिनेशंस थे. You know, रात को दाल बन रही है, 10 बजे दाल खा रहे हैं, दिन में ब्रेकफास्ट भी 11-12 बजे हो रहा है, लंच का कोई टाइम ही नहीं है. एंड आई वॉज लाइक मैं तो लाल हो जाती थी. 8 बजे मुझे भूख लगती है. आई वॉज अ पर्सन एंड माई मदर वॉज ऑल्सो अ पर्सन कि 8 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. आई वॉज इन दी हॉस्टल तो हम 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते थे. 12 बजे ब्रेकफास्ट मतलब आई वॉज अबाउट टू ऐसा हो गया कि आई वॉज
अबाउट टू फेंट कि भैया मेरे तो एनर्जी लेवल्स खत्म डाउन, मुझे तो नाश्ता चाहिए। एंड रात को अगर दाल खा रहे हैं तो ब्लोटिंग इश्यूज, और पूरी फैमिली में ब्लोटिंग इश्यूज थे। माय हस्बैंड, माय सिस्टर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, एवरीबडी हैड ब्लोटिंग इश्यूज। रात को 12 बजे तक दे वर सिटिंग एंड यू नो बर्पिंग, और कुछ हो रहा है, मुझे पेंटोसिड दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे यू नो नींबू पानी दे दो। देन आई ग्रेजुअली, बिकॉज इनिशियली तो हमारी हिम्मत होती नहीं है बोलने की, बट ग्रेजुअली यू नो डॉक्टर्स ऑल्सो सेड कि आपको प्रोटीन जो है रात को नहीं खाना है, दाल आप दिन में बनाओ, दिन में खाओ। Gradually they changed. Now is the time my mother-in-law who used to have breakfast after everything, जो सारा काम कर लेती थी, prayers के बाद everything, she used to have first meal around 12. But now she is having around 7:38 breakfast. She is 87 years old. She has changed her schedule. She has her dinner around 7:30. Every habit can change in 21 days if we really want to do it. And my entire family and my husband, तुमने मुझे गलत आदत लगा दी, मेरा ब्रेकफास्ट के बिना काम नहीं चलता है। Because he used to feel कि वो एक empty stomach को दूध पी के जाते थे, and he used to every whole day, मुझे bloating है, मुझे stomach issues है, मुझे constipation हो रहा है। So of course you need to change, you consciously आप अपने lifestyle को change कर दो। You just do it for a week, 10 days, आपको खुद में जब चेंज लगेगा, you will say कि हाँ यार मेरे में चेंज है, I should follow this. Now my entire family follows this. So like dinner में अगर दाल में 7 o'clock पे हमारा डिनर हो रहा है तो भी दालें नहीं लेंगे। नहीं ले सकते हो, 7 तक ले सकते हो। ले सकते हैं। See, आइडियल गैप आपका 3 घंटे का होना चाहिए आफ्टर प्रोटीन इनटेक। अगर आप 7 बजे खा के 8 बजे सो जा रहे हो तब भी ठीक नहीं है। 7-8 बजे खा के भी आप 10-11 बजे अगर सो रहे हैं 11 बजे, if you have that 3 hours of gap, it's fine. But you will feel the difference. I mean, you just follow और आपको difference लगेगा. And you will come back to me saying हाँ यार मुझे है ये difference. Try from tomorrow. 3 meals at least. 3 to 4 cups of vegetables. 1 fruit in a day. Nuts and seeds in a day. 2 to 3 liters of water in a day, which is mandatory. तो आप इन गैप चीजों नहीं को, होता तो हम छोड़ देना। हाँ जी, अगर गैप नहीं है हाँ, तो कहीं से बाहर से आया रात में 8-9-10 बजे आए तो no don't skip it. अब वो तो फिर ऑप्शन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि फिर आप 15 मिनट का थोड़ा वॉक कर लीजिए। डोंट गो जस्ट लाइक अभी खाया और एकदम से हम सोने चले गए, दैट विल बी दैट आपको होंगे इश्यूज, आपको होते भी होंगे आई थिंक, कहीं ना कहीं ब्लोटिंग इश्यूज, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज, कुछ ना कुछ, मे बी नॉट रेगुलरली बट दे विल कम अप, दे विल कम अप। स्किप नहीं करना तो क्या करना? आप खा लो, फिर अगर आप 9 बजे भी खा रहे हैं, सो हैव 15 मिनट्स ऑफ वॉक आफ्टर दैट। वॉक कर लीजिए। अगर आप लिसानियन है तो आप न्यूट्रीमिल ले लीजिए आपके साथ हाँ, में। न्यूट्रीमिल लेके चलिए। अपने न्यूट्रीमिल या फिर जो प्रोटीन, बिफोर दिस आई नेवर न्यू अबाउट न्यूट्रीमिल, सो आई यूज्ड टू कैरी माय प्रोटीन बार्स या कुछ स्नैक्स। इवन जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरा एक डिब्बा चना, पीनट्स, उसमें रोस्टेड मखाने। जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई गिव मोर गैप तो मेरा एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे या फिर मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी काम पे। सो आई हैव दोज मील्स विद मी। सो यू आर वर्किंग बट यू हैव टू मेंटेन, मतलब आपको फिर वो वेज ढूंढने पड़ते हैं कि आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करो या अपने स्केड्यूल में बिल्ट इन करो। सो आई कैरी माई डब्बा, आई कैरी माई बार्स। इफ आई नो कि मेरा लंच लेट हो रहा है तो मैं कुछ तो खा लूंगी उस वक्त, जो फीलिंग होगा। Does it work with people who are taking the nutrition? How do you suggest So this? intermittent fasting is again very specific. Yes. कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सूट नहीं करती है, जिनको ब्लोटिंग इश्यूज हैं, स्टमक इश्यूज हैं, वो अगर 16 घंटे का गैप रखेंगे और वो 11-12 बजे नाश्ता करेंगे तो उनको ब्लोटिंग इश्यूज हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स। इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस डाइट और आपका वेट स्टक हो गया है कहीं, इट्स नॉट लूजिंग, Yes. राइट, Stuck. then you can follow intermittent fasting for a specific period of time. जब आपको वो ब्रेक हो जाए प्लेटो, then you're back to your balanced diet. So intermittent fasting भी अगर आप देखें लॉन्गर टर्म के लिए for women, it's not recommended on a as a lifetime। आपका जो एक अप्रोच होता है वो नहीं होना चाहिए।
इट इज यूज वही मैंने आपको कहा कि जितने भी डाइट्स हैं दीज आर यूज थेराप्यूटिकली, मतलब एज पर योर कंडीशन, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन यूज इट. कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको सूट भी करता है. Can I add to this point? So, IF intermittent fasting is basically a method जो हमारे पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे. It's just a modern term उस पर्टिकुलर साइकिल को जो दे दिया गया. अगर आप IF का प्रॉपर वो देखोगे ना जो होता है जिस तरीके से वो फॉलो किया जाता है, दैट्स आइडली शुड स्टार्ट इन द मॉर्निंग 7:38 से स्टार्ट होना चाहिए और रात को 7-8 बजे तक खत्म 6 बजे तक, या 6-7 बजे तक वो खत्म हो जाना चाहिए. तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी वो फास्टिंग हो जाती है. अब आप नोटिस करो ये क्यों होता था, बिकॉज हम हमारे Lights आयुर्वेदा नहीं में थे ये बोलते थे कि हाँ लाइट्स नहीं थे ऑफ कोर्स. और एक ये भी फैक्टर है कि हमारे बोलते हैं ना कि जब सूरज रहता है तो हमारे शरीर में अग्नि रहती है एंड वो अग्नि जो होती है वो हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का So काम basically करती your है. enzymes. Yeah, enzymes basically. So जब दिन Hydrochloric होता है, acid basically वही है. yeah exactly. क्या है इट इज? So जब- Hydrochloric acid. ओके, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So जब दिन होता है वो तेज होती है और जैसे जैसे दिन ढल जाता है when the sun sets तो वो Again. नॉर्मली धीमी हो जाती है. तो अगर आप रात को 8-9 बजे 10 बजे हैवी डिनर लेते हो तो वो नेक्स्ट डे तक डाइजेस्ट कि नहीं हो आपके पा रहा. एंजाइम्स ही नहीं इतने एक्टिव हैं उस वक्त. Yeah. That's And one more thing, just to give you an idea कि जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर का भी काम करती है. जब डाइजेशन खत्म होता है तब रिपेयरिंग स्टार्ट होता है. बट अगर रात भर डाइजेशन ही चल रहा है, बॉडी उसी में एग्जॉस्ट हो गई है, तो रिपेयरिंग कब होगी? सो दैट्स हाउ वी फील लेथार्जिक द वेरी नेक्स्ट डे. हम सोए बराबर पर हम अगले दिन भी थके हुए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी एनर्जी Body was ड्रेन हो गई है. constantly in Digestive. process. Digestive system impact होता है, mood impact होता है, all of things. फिर वो one after the other. It's a cycle. ग्रेट.